उनकी थोड़ी सी भी अगर हम्म। हेल्प कर पाऊँ, तो उसमें बेसिकली मुझे सीखना था ये। अभी आई एम कम्प्लीटली मेटल फ्री, दोनों रॉड्स निकल चुके हैं। वेरी गुड। पीसीओडी नहीं है, प्री डायबिटिक भी नहीं हूँ, आई एम फॉलोइंग गुड लाइफस्टाइल, तो मतलब शाबाश। एवरीथिंग इज ऑसम नाउ। और बस मेरा बस बेटा भी इसी 8 की साल का हो इसी गया। की कमी तब थी। ऐसा लगता तब ऐसा लगता था कि मैं पता नहीं फिर कब चल कूद पाऊंगी, उसके साथ खेल भी पाऊंगी, क्योंकि वो जस्ट 10 महीने का था जब मेरा एक्सीडेंट हुआ। तो मैं उसको मतलब जब उसको चलना था तो मेरा वॉकर पकड़ पकड़ के वो चलना सीखा, क्योंकि मैं तो उसको उठा नहीं पाती थी। तो थोड़ा डिप्रेशन वाला टाइम था वो, कि डिपेंडेंट हूँ, माँ सब कर रही थी, मतलब मैं कंप्लीटली बेड पे थी, तो पॉटी के लिए भी वो मुझे पॉट ला के देती थी। ये कंडीशन थी वो 9-10 महीने। ओह। बट नाउ एवरीथिंग इज गुड। तो आई जस्ट वांट टू गिव बैक टू सोसाइटी, कि तब मुझे जो सपोर्ट था वो मुझे मिला, तो अभी शायद मैं किसी और को वो पास ऑन करूँ। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी इंस्पायरिंग स्टोरी। उत्तरा, ट्रैवलिंग में है तू, वीडियो पे आ पाएगी क्या? हाय। Hello, hello. I'm sorry, I'm just traveling back home. Late हो गई. कोई मैं बात नहीं। so much. How कोई are बात। you, Saka ji? I'm talking to you for such a long time. How are you doing? मैं बढ़िया, तू सुना कैसी है? मैं एकदम लाइक देखो ना अरे, मस्त. मैं तुम्हारे बारे में यहाँ कुछ बोलूं? एम आई अलाउड? जरूर, एब्सोल्युटली 100%. चलो बिंदास. ये हमारी उत्तरा है, कैंसर सर्वाइवर है, और अब पूरी तरीके से उससे बाहर आ गई है। और जब इसको कैंसर हुआ था तब रेकी का बहुत सारी हमने इसके लिए प्रेयर हीलिंग सब करते रहे थे। और हमसे जो बना हमने किया इसके लिए, और इसने बहुत अच्छे से रिसीव किया। आई एम सो हैप्पी, इसके बाल वाल सब वापस आ गए हैं। और तो हमारे पास में देखो ये ग्रुप कितना स्पेशल हुआ है। इधर भक्ति ने अपनी स्टोरी सुनाई और इधर उत्तरा हमारे पास में, ये दो ब्रेव हार्ट लेडीज हैं। तो मजा आने थैंक यू, वाला है। थैंक यू. थैंक यू सो मच. यस। और मैं दो शब्द बोलूं मेरे तरफ से. जरूर बोलो। डिस्टरबेंस होगा, बट कोई जस्ट बात नहीं। मैनेज कर लेना हो. मैं ऑटो में हूँ. सो हेलो एवरीवन. आई एंड प्रणाम. प्रणाम टू सकावा. लाइक हाय हाय दीपिका. हाय Bakri. Hi, hello everyone. I can't breathe right now because of traffic. So, हम्म। and it has been a beautiful, actually, I say beautiful journey when I was going through cancer, I should say, because every day, Kashish and Sakaji and Sakama, everyone, they used to pray for me, heal me. Yes, I wasn't the other spiritual thing, but I would like to emphasize right now on what we are and why we are this energy. And trust me, even the smallest of the time or the smallest of the things, I used to just ping and she said, "Don't worry, I'll just do your healing right now." I have gone through a lot of pain. I'm not saying that it wasn't painful, it wasn't strenuous, it wasn't nothing. Everything was there. But I think somewhere down the line, on subconsciously, I knew that I was healing. No, medicines are there, fine, but that stress of coming out of that chemo and the weakness and the tiredness and the radiation every single day for uh, 7, 8, 10 months you have to go through that, and pre-operation and post-operation, everything. It was too much of overwhelming thing. But somewhere down the line I felt so much of love that Kashish and Sakaji was giving me and sharing me every single day during their prayers and the Reiki sessions. And I used to just sleep like a baby. I think that was the most important thing. Sleep, because only sleep can recover you. And we get so tense with so many things, and the thought goes haywire. It's like it keeps fluttering so much that we don't get sleep because of the tension. And if you're not getting, it's a vicious cycle. If you're not sleeping, you will not recover. So that used to help me. I used to sleep a lot, and I have recovered so well. Today I got a job like in Feb, and today is August, Feb 9, and August 9 I'll finish 6 months, and I've not even taken a single leave because of my health.
I've not taken a half day. I've not gone late. I have not. I work like 10 to 12 hours every day. So proud of you. So proud of you. I So work proud of 10 you, to really. 12 hours plus 1 hour traveling, 2 hours traveling. So you can take around 14 hours I'm out of the house. And it's just that, I just forgot. I have forgotten that I had cancer. I had something. I've forgotten. And that, thank उत्तरा, you. अभी कोई मेडिसिन से ऐसा रेगुलर बेसिस पे चल रहा है? कुछ लेना पड़ता है? I have to take medicines. It's a high dose medicine. It's very high dose. I'm a BRCA positive. Actually, it's a hereditary issue. So for me to cut that in a reoccurring, I have to take that particular medicine for 2 years, Yes. and I have to spend like 70 grams per month. So don't ask me about it. I'm even like, don't ask me. Or I have to take it. I mean, that's something. See, never stop your medication. I mean, Reiki is Yes, happens. that's It what, will happen, but yeah, never ever stop your medication yes, because that's what doctor I will was going say, to say. and yeah, doctor will say what you have to do. He knows your blood counts. He knows exactly your vital stats, and you should never. Reiki is something energy which goes through. But for you to even take that Reiki, you need to have the medicine and be better to take the Reiki. So, terminal illness or any illness, what the doctor is prescribing, never ever say no to it or say I'm doing Reiki and I will stop it. Don't. No, Reiki is no. a value addition, Yeah, right? Sakama, yeah. it's a value addition, and it will help you heal faster. Yes, If your healing period is, for example, 10 months, it will help you heal in 5 months along with the medicine. very But true. you have to continue that dose. That you should never let go of that. Yes. Like वो शूरवीर बनने मत जाओ. That's one thing I can say. उसको भी वो नहीं होता. It doesn't work like that. देखो क्या होता है ना, क्या होता है Thank you. कि थैंक यू उत्तरा। क्या होता है कि हाँ. लोग जैसे रेकी में आते हैं ना, तो वो थोड़ा सा उनको और हीरोगिरी भी आता है कि नहीं अभी तो बस रेकी कर लिया, मतलब इतनी बहादुरी तो मैं भी नहीं दिखाती हूँ। तो मैं लोगों को बोलती हूँ भाई जो तुमको डॉक्टर ने बोला है वो चलने दो, रेकी एक सपोर्ट हाँ. थेरेपी है, उसको वो बूस्ट Exactly. सपोर्ट करेगी। तुम बिल्कुल जिसको बोलते हैं ना रागा सांगा मत बनो कि बस अब रेकी आ गया हाँ. तो ये दवा फेंकी वो फेंकी में ये मत करना भाई, ये तो कल को हमें गालियां दोगे, है ना। चलो तो अब हम Correct. Correct. रेकी का Thank शुरू you so करते हैं much. इंट्रोडक्शन। थैंक यू सो Yes. मच। एक्चुअली ना हमारे Thank you. Lovely. पास में ये जो लिंक है ये 40 मिनट वाला ही है, तो सिर्फ रेकी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ही होगा। उर्वी क्या तुम आना चाहोगी बेटा, वीडियो पे आना चाहोगी उर्वी? यस, कहाँ चुप के बैठी, आना चाहिए ना, आजा माइक पे फटाफट। जी जी कैसी है? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? बढ़िया। तेरे हो गए इनिशिएशन अभी 4 दिन के? नहीं, बाकी है, चल बाकी रहे हैं। चल रहे हैं, कितने दिन जी, हुए? 2 दिन हुए हैं। ओके चलो, तो रेकी के बारे में जानवी ने बता ही दिया होगा वैसे भी, तो रिपीट में सुन जी लिया है ना। जी ठीक है, कैमरा ऑन रखना, बी देयर। चलो अब हम शुरू करते हैं। रेकी के बारे में ज्योति जी आप बताओ ना, थोड़ा इंट्रोडक्शन दो ना, आओ जरा। रेकी लाइक जैसे अभी उत्तरा बोल रहे थे ना, इट्स एनर्जी हीलिंग, तो हम उसको प्राण एनर्जी कर लें या इट इज बेसिकली अ रिसोर्स फ्रॉम द यूनिवर्स विच इज फ्लोइंग, हम सब के अंदर ऑलरेडी फ्लो कर रही है, बट उसको चैनलाइज कैसे करना है वो हमको हमारे मास्टर्स सिखाते हैं। इट इज समथिंग वेरी ओल्ड, एक ओल्ड हीलिंग प्रैक्टिस है ये। एंड जो हमारे पास जब ये आया, इट वाज थ्रू जापानीज जो मास्टर थे डॉक्टर मिकाओ उसुई, यस, उनके थ्रू आए। सो एंड देन देयर आर 5 प्रिंसिपल्स बेसिकली, जो बिकॉज आपको प्योरिटी होनी चाहिए सो दैट यू बिकम अ चैनल ऑफ दैट एनर्जी, यू नो, व्हेन यू आर प्योर,
वो एनर्जी आपके अंदर फ्लो करेगी, ब्लॉकेजेस नहीं होंगे। ये सब सखा माँ बहुत सारी बातें बताएंगी आपको। तो एंड चलो रेकी रेकी का शॉर्ट एंड स्वीट बताती हूँ। हाँ हम देखो इसका अनुभव बचपन से कर रहे हैं। लाइक अगर हमारे सिर में कभी दर्द हुआ या कुछ भी हुआ तो हम सबसे पहले दौड़ के कहाँ जाते हैं? अपनी मम्मा के पास। और मम्मा क्या करती है? प्यार से हमारे सर पे हाथ रखती है। दिस इज रेकी। मतलब हमारे सभी के हाथों में ऑलरेडी ये रेकी एनर्जी तो है ही, सभी के हाथों में है। अथर्ववेद में एक श्लोक है जिसका भावार्थ ये है कि मेरे दोनों हाथों में शिव की कल्याणकारी शक्ति है और इससे मैं समस्त रोगों का उपचार कर सकती हूँ, कर सकता हूँ। मतलब हमारे हाथों में भगवान ने ये ताकत देकर भेजी है। अब इसका प्रयोग हम क्यों ठीक से नहीं कर पाते? क्योंकि उतनी साधना नहीं है और अवेयरनेस तो है ही नहीं, हमें पता ही नहीं। पहली चीज तो वी आर नॉट अवेयर। अब हमारे जो साधु संत हैं, आपने देखा होगा, वो आशीर्वाद देते हैं या आंखों से भी देखते हैं या बोल दिया जा तेरा ये काम हो जाएगा और हाथ ऐसे कर दिया, कुछ ना कुछ ट्रांसफर ऑफ पावर हो जाता है। लेकिन उसमें और रेकी में एक मेजर फर्क मैं बताती हूँ। अभी मेरे गुरु आए थे, मैं बताती हूँ, एक एग्जांपल आपको देती हूँ। मुझे एक स्पिरिचुअल ग्रुप आया था जिससे कि कुछ लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं और मैं होस्ट थी और मैं बड़ी ओवरबर्डन थी, बहुत एग्जॉस्ट हो गई थी। रेकी करने का भी मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था उस टाइम, या बहुत कम मैं कर पा रही थी। तो ओवर एग्जॉस्शन की वजह से मुझे बुखार शुरू हो गया और बहुत सारे नेगेटिव एनर्जीज मुझे ऐसा लग रहा था कि इकट्ठी हो गई है। इतने में गुरु पूर्णिमा के आसपास मेरे एक गुरु आए जो कि मंत्रा चांटिंग करते हैं। बहुत पुराना गुरु शिष्य परंपरा वाले गुरु हैं वो, उनको उनके गुरु ने गादी दिया, ऐसा चलता है। तो उन्होंने मुझे मंत्र मेरे ऊपर ऐसा फूका कि तू ठीक नहीं लग रही है, आ मेरे पास सामने बैठ। ऐसा फर्स्ट टाइम किया उन्होंने। उनको मतलब मेरी हालत देख के इतना तरस टाइप्स आ गया कि ये तो अब बिल्कुल ही गई काम से। लेकिन ये हुआ कि उसके बाद मैं तो रिकवर हो गई, वो बीमार पड़ गए। रामकृष्ण परमहंस का भी हम सुनते हैं कि उन्होंने किसी और का कैंसर ले लिया था और वो उसमें चले गए। तो ये जो हमारे संत हैं, ये बहुत मंत्र शक्ति के द्वारा अपनी पावर को एनहांस करते हैं। और फिर कोई भी दुखियारी आता है, दुखी होता है, बीमार होता है, उसको ये अपना अर्जित किया हुआ तप ट्रांसफर कर देते हैं, पर बदले में उनका गिलास खाली हो जाता है। उनको वापस से तप करना पड़ता है अपनी उस खोई हुई ताकत को, उस ऊर्जा को वापस रिगेन करने के लिए, पाने के लिए। रेकी में क्या होता है, यहाँ पे डिफरेंस है। इवन प्राणिक में भी थोड़ा साइड इफेक्ट हो जाते हैं और भी कई मोडालिटीज हैं, बट रेकी थोड़ी सी सेफ है। इसमें क्या होता है, हम खुद कुछ भी नहीं करते हैं, कॉस्मोस से आपका कनेक्शन बैठ जाता है। एक प्रोसेस होता है इसमें, इनिशिएशन या शक्तिपात। आपके शरीर में कुछ एनर्जी सेंटर्स है जिन्हें हम चक्र बोलते हैं। सभी लोगों ने सुना होगा हमारी बॉडीज में चक्र होते हैं। उन चक्रों को ऐसी फ्रीक्वेंसी पे अलाइन किया जाता है कि आप वो जो एक प्राण शक्ति का कोई सोर्स है, कहाँ है वो हमें भी नहीं पता है, बट यू गेट कनेक्टेड विथ दैट। और ये ब्लेसिंग हमारे मिकाओ उसूई जी एक प्रोफेसर थे, उनको तपस्या के बाद में आशीर्वाद स्वरूप डायरेक्ट यूनिवर्स से, भगवान से, ऊर्जा से कह लो, ये आशीर्वाद मिला कि इस प्रोसेस को तुम आगे बढ़ाओ। कैसे, वो उनको पता था। तो वही गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा ये मुझ तक आई है। तो इसमें आपका इनिशिएशन हम करते हैं, आप उससे कॉस्मोस की उस एनर्जी से कनेक्ट हो जाते हैं। फिर आपके इन्हीं हाथों में जब भी आपको खुद के लिए या किसी और के लिए इस रेकी शक्ति या प्राण शक्ति, जीवन शक्ति की जरूरत होती है, आप एक प्रेयर करते हैं, वो आपको सिखाई जाएगी। वो आप प्रेयर करते हैं, एक लाइक स्विच ऑन हो जाता है। उसके बाद फिर आप अपने खुद के वेलबींग के लिए या किसी और के वेलबींग के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। प्राइमरीली बाय टच, टच के बिना भी थोड़ा दूर से भी आप बॉडी के इसको यूज कर सकते हैं। कैसे, वो आपकी क्लास में, इसी क्लास में आएगा। इसमें और हायर लेवल पे जब हम जाते हैं तो आप यहाँ बैठे बैठे
कहीं अमेरिका तक में भी अगर कोई हुआ तो उसको भी रेकी पास कर सकते हैं, जैसे हम डिस्टेंस हीलिंग करते थे उत्तरा की। अब उत्तरा तो मुंबई में है, हम यहाँ हैं, फिर भी उसकी रोज हीलिंग होती थी डिस्टेंस में। तो ये इसमें और आगे जाते हैं तो यू कैन डू डिस्टेंस हीलिंग। इंटेंशन की जरूरत होती है, दैट्स इट, और कुछ सिंबल्स होते हैं, उनका प्रयोग होता है। फर्स्ट डिग्री में एक ही सिंबल आपको मिलने वाला है, उसका कैसे प्रयोग करना वो आपको बताया जाएगा। ठीक है। मेन होता है आपके शरीर पे आपके हाथों को रखना, और आप चाहे रेकी मास्टर भी हो जाए ये चीज वैसी ही रहेगी। तो इसका जो बेस है वो है आपके बॉडी पे आपके हाथों को रखना। तो जानवी, मैं आपको जगह बुलाती हूँ प्रेयर के साथ में, फटाफट डेमो कर दो। 10 मिनट है अभी हमारी मीटिंग में, तो एटलीस्ट इतना तो आज मैं बता ही दूं, फिर हम व्हाट्सएप कॉलिंग पे आ जाएंगे, फिर जितने भी लोग आ जाएं उसमें। आभार विधि से सबसे पहले आभार आभार विधि करेंगे। आभार विधि के लिए दोनों हाथों को हाथ नमस्कार की मुद्रा में होंगे। इसके बाद सबसे प्रथम लाइन आएगी, मैं स्वयं को धन्यवाद देती हूँ। सेकंड, मैं रेखी शक्ति को धन्यवाद देती हूँ। थर्ड, मैं अपने माता पिता, अगर आप मैरिड हैं तो इन लॉस को भी लेंगे इस प्रार्थना में, को धन्यवाद देती हूँ। उनको इमेजिन करेंगे और धन्यवाद देंगे, दोनों पक्ष के माता पिता को। फोर्थ लाइन आएगी, मैं अपने समस्त गुरुजनों को धन्यवाद देती हूँ। और इसके अलावा भी कोई ऐसा पर्सन है जिसने आपकी लाइफ में थोड़ा बहुत भी मोटिवेट किया है तो आप आभार विधि में उनको ले सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आप अपने हाथों को ऊपर लेके जाएंगे, जो अपनी इंडेक्स फिंगर होती है उसको जहाँ पे हम बिंदी लगाते हैं वहां पे टच करेंगे, थोड़ा सा सिर झुकाएंगे। जिस तरीके से हम मंदिर में प्रार्थना करते हैं ये आभार विधि वैसे ही है, आराम से करिएगा, शांति से करिएगा। फिर उसको वापस आप हार्ट चक्र पे लेके आएंगे। ठीक है। इसके बाद आप अपने हाथों को, जब हम कुछ प्रसाद या अंजलि लेते हैं तो हाथों को थोड़ा सा कर्व करते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट पोजीशन आपकी आएगी यहाँ से यहाँ तक, 6 पोजीशन आएगी। माइंड में रखिएगा कि यहाँ से यहाँ तक मेरी 6 पोजीशन है। फर्स्ट आपकी आएगी आंखों पे। आंखों पे जब आप हाथ रखेंगे तो नाक प्रेस नहीं होनी चाहिए। ठीक है। सेकेंड पोजीशन आएगी फिंगर का जो ये लास्ट पॉइंट होता है, ये जो 3 लाइनें होती है ना उसमें जो लास्ट लाइन होती है वो आपकी आंखों की यहाँ से यूं। इसमें एक चीज बता दूं मैं कि ये जो हाथ का कर्व बनाया, हाथ सीधा नहीं रखना, आंख पे रखेंगे तो वो आंख को हर्ट करेगा। हाथ को हमने हल्का सा कर्व दिया, तो ये वाला जो सेंटर पार्ट है ये आपके आई बॉल के ऊपर आना चाहिए, लाइक दिस, ऐसे। तो यहाँ पे स्पेस मिलेगा उसको, और उस स्पेस में ऊर्जा, एनर्जी आपको फील होगी। इसको आप ध्यान रखिएगा। आगे चलो बेटा। सेकेंड, साइड ऑफ टेम्पल। थर्ड, ईयर। फोर्थ, एक हाथ सिर के आगे, एक हाथ जस्ट उसी के सिर के पीछे। अच्छा, ये सारा ना आपके व्हाट्सएप ग्रुप में सब पोस्ट होने वाला है, तो चिंता मत करना कि कुछ छूट जाएगा। एक एक लाइन, एक एक पोजीशन सब पोस्ट होने वाला है अभी। यस। वो राइट हैंड आगे लेफ्ट हैंड पीछे ऐसा कुछ है तो वो भी बता दीजिए। नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। चलो। ठीक है। फिफ्थ पोजीशन आएगी, या तो आप इस तरीके से हाथ रखेंगे या तो आप इस तरीके से हाथ रखेंगे। ठीक है। सिक्स पोजीशन, या तो इस तरीके से या तो इस तरीके से। ये हो गई आपकी 6 पोजीशन फेस से नेक तक की। एक बार पूरा देख लो, फिर उसको वापस से रिवाइज करेंगे। उसके बाद आएगी आपकी 7 पोजीशन राइट साइड पे। 8 लेफ्ट साइड पे। 7 फिक्स है, पहले आप राइट साइड ही लेंगे, हाथ ऊपर नीचे कुछ भी कर सकते हैं, पर 7 फिक्स है कि आप पहले राइट साइड ही लेंगे। उसके बाद
8, फिर 9। आराम से आराम से। देखो पहले सीधे हाथ की तरफ लीवर को हमने कवर किया। लीवर बायोलॉजिकली थोड़ा ऊपर होता है, लेकिन हमारे हाथ थोड़े से नीचे रहेंगे। तो कंफ्यूज मत होना कि लीवर की प्लेसमेंट तो ऊपर होती है, इनके हाथ थोड़े नीचे क्यों है। ठीक है, एनर्जी अपने आप पहुंचेगी। तो राइट साइड में लीवर और लेफ्ट साइड में पेंक्रियास पे हम दोनों हाथ एक के नीचे एक रखेंगे। उसके बाद में नाभि, आपका नेवल से ठीक ऊपर, आपका पेट का जो मिडिल पार्ट है, वहां पे दोनों हाथ आएंगे। वाह पहलवान, से तो खड़ी हो गई, वेरी गुड। फिर आएगा हार्ट, यस, सेंटर ऑफ द चेस्ट। फिर आएगा नाभि के नीचे दोनों हाथ, आपके जो नाभि का वो खड्डा है उसके नीचे दोनों हाथ आएंगे, यस। फिर आएगा ओवरीज। हमारे देखो, हम क्योंकि यार सारा फीमेल ग्रुप है तो गर्भाशय पे रेखी देते हैं। अगर मेल होता ना तो हम लेग जॉइंट, जहाँ पे पैर का जोड़ होता है, वहां पे हाथ रखवाते हैं। ठीक है, नाउ बैक बॉडी पे आ जाओ। ये सारे पोजीशन 3-3 मिनट एक्चुअली रखना है। अभी तो सुपर फास्ट चल रहे हैं हम, म्यूजिक देंगे उसमें 3 मिनट की बेल होगी, 3 मिनट पूरा आपको रखना है, उसके बाद चेंज करना है बेल बजने के बाद। यस, ये आपकी जो नेक है पीछे, उस पे दोनों हाथ आए हैं, यस। देन कंधे, कंधे आप आगे से ऐसे हाथों को क्रॉस भी कर सकते हैं, इस तरीके से, ये इजी पड़ता है। या फिर ओरिजिनली तो इस तरीके से रखते हैं, जैसे अगर आप मुझे देख पा रहे हैं, या इसको जानवी को देखिए आप, ऐसे में हाथ दुख जाते हैं। तो बेटर है कि आप हाथों को क्रॉस कर लें। यस, नाउ बैक ऑफ हार्ट। एक और कौन आया, यस, नाउ कम्स किडनी। बेटा थोड़ा सा ऊपर होना पड़ेगा, या मोबाइल को थोड़ा ठीक कर, यस। ये जो बेल्ट जोन होता है ना, वहां पे दोनों हाथ हैं। ये पॉइंट को अच्छे से समझना। एक हाथ अगर नाभि में सीधा कुछ डालें तो पीछे कहाँ निकलेगा, बैक बॉडी पे, वहां पे एक हाथ आपका आड़ा होगा हॉरिजॉन्टल, उसमें एक हाथ आपके जो हिप्स की जो लाइन आती है, वहां पे एक गद्दी जैसा आप उसको कर लेंगे। इस हाथ को इस तरीके से हम रखेंगे। जियो में कौन आया, साक्षी? हेलो हेलो, कौन आया? मैम, साक्षी। हाँ साक्षी, चलो देख लो जहां से भी ज्वाइन हुआ है। इंटरव्यू हो गया जी। क्या? कब है? अभी 9:30 पे है ना? नो मैम, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। कोई अभी बात, जस्ट मैं। कोई बात नहीं, चलो ये देखो, ये नीज, इसके आगे चलो। ये जहां पे हड्डी उठी हुई होती है आपके पैर में, एंकल और फीट सोल, दूसरे हाथ से पैर का तलवा पूरा कवर करेंगे, ऐसे ही दूसरे पैर पे भी करेंगे। ये हो गई आपकी टोटल 20 पोजीशंस, 20 पोजीशन हो गई आपकी। अब 1 मिनट 50 सेकंड इसमें है। तो हम लोग व्हाट्सएप कॉल पे कितने लोगों को ले सकते हैं जानवी? 8 8 लोग आ सकते हैं। 8 आ सकते हैं, यहाँ 8 ही लोग। 8 मुझे हटा दो तो कितने लोग हो आ गए? जाएंगे इतने। आ जाएंगे ना? 8-9 ठीक, लोग आ जाएंगे सभी। ठीक है। तो जैसे ये मीटिंग बंद होती है, वहां पे शिफ्ट कर लेना। उर्वी है ओके उसमें, मैम। ग्रुप में है? यस मैम, है माँ। ओके, सारे ही लोग हैं, तो ठीक है। उत्तरा जी का शायद नंबर ऐड करना है, आपने किया क्या? मैं करती हूँ, उत्तरा का ऐड करती हूँ। हाँ जी। यस यस, इतना समझ में आया? इतना समझ आया सबको? लास्ट के 2 पोजीशंस थोड़े क्लियर नहीं थे मैम, आई थिंक नेटवर्क का कुछ इशू। नेटवर्क का इश्यू, तो वापस बता दे। पैरों के तलवों पे एक हाथ और एक हाथ ऐसे एंकल पे रखेंगे, यूं। ओके। ठीक है, सेम वही, पैरों के तलवों पे
और एक हाथ ये एंकर है ना, जहाँ पे ये यहाँ पे ऐसे रखेंगे और पैरों के तलवों को इस तरह करेंगे। ओके, थैंक यू। तो अब 1 ही मिनट बचा है। आई थिंक वी शुड शिफ्ट टू व्हाट्सएप कॉल, है ना? वहां पे आ जाओ।